So today we'll start with the next topic, that is Ohm's law. Now, what is the Ohm's law? Rishabh, how can we define the Ohm's law? V upon I, R is equals to V upon I. स्टेटमेंट नहीं पता है? ओके, तो बता दीजिए क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे? Now this is a electric circuit to verify the Ohm's law. That is the first practical which you basically do in the physics lab. Physics lab में 12th का जो first practical है वो यही है, verification of Ohm's law. And this is a electric circuit to verify the Ohm's law. So Ohm's law states that current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor, provided that temperature and other physical parameter remain constant. ठीक है, क्या बोल रहा है कि यह कंडक्टर वायर है, रेजिस्टर वायर है. This conductor wire is connected to the battery key and rheostat, and one ammeter is connected in the series and one voltmeter is connected in a parallel to the resistor wire. Now we supply the current with the help of battery. So what we observe that constant current is flowing through the resistor, and due to that current a potential difference is developed across the end of conductor. So देखिए, as we know that potential difference is a cause of flow of charge, and the electric current is the effect of flow of charge. मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इसके अंदर करंट फ्लो करेगी. So potential difference is a cause of flow of charges, and the electric current is the effect of flow of charges. जब तक इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी. तो जैसे इस रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी. तो स्टेटमेंट क्या है? दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर. दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I गिवन दैट अदर फिजिकल पैरामीटर्स एंड टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. V is directly proportional to I. As we remove the proportionality sign, we add a constant, and that proportionality constant is R. So R is equals to V by I. That is a mathematical relation of Ohm's law. Now, what is R? R is known as resistance of conductor. R को हम क्या बोलते हैं? Resistance of conductor. R is what? R is V by I, and R is resistance of conductor, which is property of conductor. Resistance of conductor क्या है? Property of conductor
which resist the flow of charges, which resist the flow of current. So how can we define a resistance of conductor? Resistance of conductor is a property of conductor which resists the flow of charges. मतलब रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ज्यादा रहेगा उतना आपका करंट क्या रहेगा, कम रहेगा। सो ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, ये मैथमेटिकल रिलेशन एक नया वेरिएबल आपको प्रपोज कर रहा है। दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, which is a property of the conductor. Now, how to verify the Ohm's law practically and how to obtain the resistance of conductor practically? Resistance of conductor कैसे practically calculate करेंगे? तो we are connecting a resistor wire in the series with the battery key and rheostat and the ammeter, and one voltmeter is connected across parallel to the resistor wire. Now, to obtain the different values of V and I, देखिए आपको क्या बेसिकली इस ग्राफ के इसमें हमें क्या प्लॉट करना है, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि टू वेरीफाई द ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, V is directly proportional to I. So as we draw graph between V and I, this graph comes always a straight line passing through origin. तो हमें प्रैक्टिकली क्या चीज करनी है, जब ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करना है प्रैक्टिकली, तो V और I के बीच का जो कर्व होगा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑल दोज डिवाइसेस व्हिच ओबे द ओम्स लॉ, फॉर दैट VI कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो सारी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं उनके लिए VI कर्व क्या होगा, हमेशा VI कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। and the slope of VI curve gives resistance of conductor। क्या प्रपोज करेगा आपको, slope of VI curve gives the resistance of conductor। तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना होता है, उस ओम्स लॉ वेरिफिकेशन में we are taking a resistor or conductor wire of particular resistance। Now we calculate that resistance practically, तो उसको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर वोल्टमीटर लगा लेंगे। Now basically we want to collect the different values of V and I across this arc. So to obtain the different values of V and I, we are changing the position of rheostat। जैसे आपने बैटरी की और rheostat बैटरी के थ्रू करंट सप्लाई किया तो एक इसमें स्पेसिफिक करंट फ्लो करेगी और उस स्पेसिफिक करंट के अकॉर्डिंग इस रेजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब हमें V और I की डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करेंगे। पहले ये रियोस्टेट आपका एकदम क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे रहेगा जहां रेजिस्टेंस 0 है या रेजिस्टेंस एक स्पेसिफिक है। फिर हम रियोस्टेट की पोजीशन को धीरे धीरे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होती जाएगी। या तो इनिशियली हम रेजिस्टेंस मैक्सिमम पोजीशन पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम करेंगे। तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। सो वी आर ऑब्टेनिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V and I, and for those value if we are plotting the VI curve, that VI curves always comes a straight line। VI कर्व हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। Now when we calculate the slope of this curve, स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन पर रैंडम कोई भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एक पॉइंट ले लिया ये P, ये पॉइंट Q, इस P के अक्रॉस करंट है I1, वोल्टेज है V1, इस Q के अक्रॉस करंट है I2 और वोल्टेज है V2। ये आपका ये डिफरेंस हो गया I2 माइनस I1 और ये परपेंडिकुलर हो गया V2 माइनस V1। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करता है, स्लोप होता है tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो ये आ गया V बाय I और V बाय I आपको क्या मिल देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा।
पहले हमने tan थीटा कैलकुलेट किया, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर आपका है v2 माइनस v1, बेस है आपका i2 माइनस i1, तो v2 माइनस v1 आपकी v की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, i2 माइनस i1 i की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, v बाय i आपको क्या दे देगा, रेजिस्टेंस। सो स्लोप ऑफ vi कर्व गिव्स द रेजिस्टेंस, जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। सपोज इफ आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन i एंड v, इस तरफ आपने करंट ले लिया y एक्सिस पर और यहाँ आपने वोल्टेज ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएंगे आपको v2 और v1 और v2, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आपको मिल जाएंगे i1 और i2। मैंने क्या किया, दोनों एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया, मतलब y एक्सिस पे मैं करंट प्लॉट कर रहा हूँ, x एक्सिस पे वोल्टेज प्लॉट कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड IV कर्व। तो अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, i2 माइनस i1, और बेस क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, i2 माइनस i1 अपॉन v2 माइनस v1, तो ये हो गया i बाई v, और i बाई v क्या हो गया, 1 बाई r। सो स्लोप ऑफ IV कर्व गिव्स 1 बाई r, रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टर। तो यदि आपका प्लॉट ग्राफ जो है v और i के बीच में प्लॉट है, तो आपको vi कर्व का स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगा, और यदि आपका कर्व i और v के बीच में प्लॉट है, तो आपको वो क्या देगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या प्रपोज करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। एंड दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it, provided that temperature and other physical parameters remain constant. Is it clear? समझ में आया? वंदन, मान्या, ऋषभ। अब what will be the SI unit of the resistance? It is a scalar or vector. What is its dimension? तो देखिए कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर है या वेक्टर। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपका कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट आपका एक तरीके से क्या हो गया, स्केलर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, R इज इक्वल्स टू V बाय I, यानी वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए वोल्टेज के लिए होता है वर्क डन, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या हो गया, m1 L2 t माइनस 2 इंटू T1 अपॉन A1 T1 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर है ना, तो Q आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो हो गया करंट इंटू टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2, ये टी स्क्वायर ऊपर गया, टी टू पावर माइनस 4 है तो टी टू पावर माइनस 3, और ए टू पावर माइनस 3। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 3। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? अब हमने जो ओम्स लॉ डिस्कस किया, दैट V is directly proportional to I. Now we deduce that relation from the concept of drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं, और उसी लॉजिक के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑन विच पैरामीटर्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ये चीज भी हम डेराइव करेंगे। सो डिड्यूस
Ohm's law from concept of drift velocity. तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या बोला कि द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स ऑफ कंडक्टर under the influence of electric field, and drift velocity vd is equals to minus small e by capital E by m into tau. ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन है। देखिए E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड tau इज द रिलैक्सेशन टाइम। जैसे इफ आई एम टेकिंग कंडक्टर वायर ऑफ लेंथ l and it is connected to the battery of potential difference V, the electric field आपका है end of the conductor E, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी V by L, क्या हो जाएगी V by L। तो E की जगह हमने क्या कर दिया V by L प्लेस कर दिया, तो स्मॉल e V by L सॉरी इंटू M इंटू L इंटू टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने रख दिया ई बी बाय एल, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और दूसरा रिलेशन हमने यूज किया I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, तो वी डी की वैल्यू क्या हो गई I अपॉन एन ए ई, वी डी की वैल्यू क्या हो गई I अपॉन एन ए वी, तो वी डी की जगह हमने क्या रख दिया I अपॉन एन ए ई माइनस ई वी बाय इंटू टाउ बाय एम एल। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये आई जो है वो इस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, ये एम एल इस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, ये टाउ और ई इस तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं, क्रॉस इंटरचेंज कर दिया, यहां और यहां वेरिएबल इंटरचेंज कर रहा है। तो वेरिएबल इंटरचेंज किए तो देखिए क्या हुआ एम एल बाय एन ए ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू वी बाय आई। ये देखिए आई में इस तरफ ले आया, एम एल इस तरफ ले गया और ई और टाउ वो डिनोमिनेटर में ले आया, क्या आ गया डिनोमिनेटर में ले आया। सो वी बाय आई इज इक्वल टू एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ। और ये जितने भी पैरामीटर्स हैं वी बाय आई के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पैरामीटर्स है एक कंडक्टर के लिए वो सारे कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, area of cross section is constant, charge of electron constant, relaxation time is constant, and the number of electron free electron present in the conductor is constant। तो ये V by I क्या हो गया R, और R की वैल्यू क्या आ गई आपकी V by I is equals to R and that is equals to M L n a e square tau, and that is what resistance of conductor in terms of physical parameters of conductor। क्या आ गया आपका resistance of conductor in terms of physical parameters। हाँ ऋषभ, on which parameters resistance of conductor depends?